of a straight line. General equation of a straight line. फॉर्म आपके पास जनरल इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन. तो जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखते हैं हम ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0. सिंगल ऑर्डर इक्वेशन आपके पास एक्स और वाई के अंदर कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी ऑल आर कॉन्स्टेंट्स. ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 where a, b, c are constant. This is a linear equation in the variable x and y where c is a constant. मेरे पास फर्स्ट केस आता है यहाँ पे if a is equal to 0, a 0 हो, b not equal to 0. a की वैल्यू 0 पुट करते हैं, b को नॉट इक्वल टू 0, तो मेरे पास जो इक्वेशन होगी वो रिड्यूस होगी बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड वी राइट इट एज बी वाई इज इक्वल टू माइनस सी एंड वाई इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन बी. एंड व्हाट इज दिस? दिस बी ए इक्वेशन ऑफ लाइन. This represents equation of line parallel to x-axis. Having distance from the origin is given minus c upon b. c भी constant और b भी constant है. तो y is equal to minus c upon b. This represents equation of line parallel to x-axis. इसी पे सेकंड केस है मेरे पास if a is not equal to 0 हो, b 0 आपके पास, coefficient of x is not equal to 0, coefficient of y is 0. This implies ax plus c is equal to 0 and this implies a of x is equal to minus c and x is equal to minus c upon a. And what is this? This equation be a line parallel to y-axis. Parallel to y-axis. X is equal to minus c upon a. Distance from the origin is given c upon a with the negative side. This represents an equation of a line parallel to y-axis. And third case, if a is not equal to 0 and b is not equal to 0, coefficient of x भी 0 और coefficient y भी 0 ना हो आपके पास, then we write this equation ax plus by plus c is equal to 0 and we write it as by is equal to minus ax minus c and we write it as minus a upon b of x minus c upon b. And what is this? This equation represents y is equal to minus a upon b of x plus minus c upon b. इसको कंपेयर इसके साथ करें आप, mx plus c. What is this? m is equal to minus a upon b. m is equal to minus a upon b and c intercept on y-axis minus c upon b. This equation represents slope intercept form. तो तीन केस बने जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से. a 0 हो, b is not equal to 0, then this equation represents a line parallel to x-axis. y is equal to this. a is not equal to 0, b is equal to 0, then this equation represents a line parallel to y-axis. Having distance from the origin is given. And if a is not equal to 0, b is not equal to 0, then this equation reduced to the form slope intercept form minus a upon b of x plus of minus c upon b. Slope of the line or intercept on the y-axis. तो ये जनरल इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल x की पावर 1 और y की पावर 1 है. दिस इज कॉल्ड जनरल इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन. अब इसके कंडीशन के साथ मेरे पास जो रिजल्ट आता है जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की रिडक्शन की फॉर्म आपके पास, रिड्यूस द जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इनटू डिफरेंट फॉर्म्स. छोटा सा आर्टिकल है ये, लेकिन इसका यूज होता है ज्यादा, इसलिए आपको आइडिया आना चाहिए. नेक्स्ट आता है रिडक्शन ऑफ जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इनटू. 3 डिफरेंट फॉर्म है, उसके अंदर रिड्यूस करते हैं इसको. रिड्यूस
जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, reduction of general equation of a straight line, general equation of straight line ax plus by plus c is equal to 0 into, first is slope intercept form. First is slope intercept form. Second is intercept form. Second is intercept form. And third is normal form or perpendicular form. Normal form or perpendicular form. जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को 3 डिफरेंट फॉर्म के अंदर रिड्यूस करना है। जब आप 3 डिफरेंट इक्वेशन के अंदर रिड्यूस करेंगे तो वो तीनों आपके पास अलग अलग है। उस कंडीशन से आप सोल्व करें। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। फर्स्ट जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। उस जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को हम रिड्यूस करेंगे इनटू द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, देन इंटरसेप्ट फॉर्म एंड देन नॉर्मल फॉर्म। जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है मेरे पास ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन and we want to reduce this general equation of straight line into slope intercept form. Slope intercept form आपके पास y is equal to mx plus c. This is called slope intercept form. Y is equal to mx plus c. कोएफिशिएंट ऑफ y को आप लेफ्ट साइड में रखें तो मेरे पास हो गया by is equal to minus ax minus c. कोएफिशिएंट ऑफ y को लेफ्ट में रखा, रिमेनिंग टर्म को ट्रांसपोज कर दिया टू राइट हैंड साइड। कोएफिशिएंट ऑफ फाई को यूनिटी रिड्यूस कर रहे हैं। कोएफिशिएंट ऑफ फाई को यूनिटी तो ये हो गया माइनस ए अपॉन बी ऑफ एक्स माइनस सी अपॉन बी, और भी राइट इट एज वाई इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी ऑफ एक्स। यहां प्लस साइन लिख दिया, इसको लिख दिया माइनस सी अपॉन बी, और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है मेरे पास एम एक्स प्लस सी। ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। इसको इसके साथ कंपेयर किया, what is m? m is equal to minus a upon b, and this m is called slope. और स्लोप को कैसे लिखेंगे? आप किसी भी इक्वेशन की स्लोप निकालनी हो तो आप डायरेक्ट यूज करें माइनस कोएफिशिएंट्स ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट्स ऑफ y. What is a? a be the coefficient of x. What is b? Coefficient of y. माइनस साइन एज इट इज, m की वैल्यू है माइनस a अपॉन b, एंड दिस इज कॉल्ड स्लोप। तो किसी भी लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी हो तो उसकी स्लोप निकालेंगे माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। तो जनरल एग्जांपल लिया मैंने 2x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। फाइंड द स्लोप ऑफ दिस लाइन। फाइंड द स्लोप ऑफ दिस लाइन। तो इस लाइन की स्लोप होगी मेरे पास, स्लोप ऑफ दिस लाइन इज इक्वल टू m इज इक्वल टू माइनस, इसको लिखा मैंने यहां से कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट्स ऑफ y। दिस इज स्लोप ऑफ द लाइन, और वो हो गया मेरे पास माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x इज 2, कोएफिशिएंट ऑफ y इज माइनस 3, और वो स्लोप आ गई 2/3। दिस इज कॉल्ड स्लोप ऑफ ए लाइन। माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y, यहां से मिला रिजल्ट मेरे को। दिस इज द स्लोप ऑफ द जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो जब भी इक्वेशन ऑफ लाइन देगा स्लोप फाइंड आउट करनी होगी, तो लाइन की स्लोप निकालेंगे माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y, एंड इंटरसेप्ट c इज इक्वल टू इंटरसेप्ट हो गया आपके पास माइनस c अपॉन b। व्हाट इज c? c इज कांस्टेंट, एंड व्हाट इज b? कोएफिशिएंट ऑफ y विद अ नेगेटिव फैक्टर। तो आपके पास इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, intercept on y axis. This is called intercept on y axis. तो ये फर्स्ट जनरल इक्वेशन को रिड्यूस किया हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में।
जब भी जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को आप रिड्यूस करेंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर, उसका मतलब है कि सबसे पहले कोएफिशिएंट ऑफ फाई को लेफ्ट हैंड साइड में रख लें, कोएफिशिएंट ऑफ फाई को लेफ्ट हैंड साइड में रखें, रिमेनिंग को ट्रांसपोज कर दें राइट हैंड साइड में। उसके बाद सेकंड स्टेप होगा कोएफिशिएंट ऑफ वाई को यूनिटी कर ले आप, कोएफिशिएंट ऑफ वाई के साथ जो भी टर्म लिखी है उससे राइट हैंड साइड में ले जाओ तो डिवाइड होगा। जो रिजल्ट बनेगा आपके पास वो रिड्यूस होगा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप m माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y। आप आगे से जब भी किसी लाइन की स्लोप निकालेंगे उसमें इस फॉर्मूले का आप डायरेक्ट यूज करें, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y। ये फर्स्ट केस था कि जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिड्यूस करना है किस फॉर्म के अंदर, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर, और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है y = mx + c। दिस इज कॉल्ड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब सेकंड केस है मेरे पास रिड्यूस इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म, रिड्यूस द जनरल इक्वेशन इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म मेरे पास ये है x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। दिस इज कॉल्ड इंटरसेप्ट फॉर्म। अब इस जनरल इक्वेशन को, जनरल इक्वेशन ये है मेरे पास ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। We want to reduce this general equation of straight line into intercept form. अब intercept form के अंदर राइट हैंड साइड में 1 चाहिए मेरे को। तो जब भी आप जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस करेंगे तो सबसे पहले आप कांस्टेंट को राइट हैंड साइड में ले जाएं, सबसे पहले कांस्टेंट को राइट हैंड साइड में ले जाएं। ax प्लस by इज इक्वल टू -c। If we want to reduce general equation of straight line into intercept form, then first of all we transpose the constant term onto right hand side, transpose the constant term onto right hand side। then second step होगा dividing both sides, divide both sides by -c। नेगेटिव साइन से, नेगेटिव c से डिवाइड करते बोथ साइड्स, तो मेरे पास आ गया ax/-c प्लस by/-c इज इक्वल टू 1। -c से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, क्योंकि मेरे को राइट हैंड साइड में 1 चाहिए। तो पहला केस स्टेप होगा मेरे पास कि राइट हैंड साइड में 1 को रिड्यूस करो। तो सबसे पहले कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड में ले जाएं, राइट हैंड साइड में जो फैक्टर गया उससे दोनों तरफ डिवाइड कर दें। अब आपको चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ x यूनिटी, कोएफिशिएंट ऑफ x को 1 बनाया, तो कोएफिशिएंट ऑफ x के साथ a लिखा है तो डिनोमिनेटर में आएगा 2 बनेगा आपके पास -c/a। कोएफिशिएंट ऑफ y को यूनिटी बनाया -c/b इज इक्वल टू 1। कोएफिशिएंट ऑफ x को यूनिटी फॉलो करें, x के साथ a लिखा है, a डिवाइड करेगा तो -c/ बनेगा। इसको इसके साथ कंपेयर करें, x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। दिस इज द इंटरसेप्ट फॉर्म। व्हाट इज a? दिस इज इक्वल टू इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस, and what is this? This is equal to -c/a. This is intercept on x axis. And what is small b? This is intercept on y axis, and this is equal to -c/b. Intercept on y axis -c/b. तो जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिड्यूस करना है इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ट्रांसपोज द कांस्टेंट टर्म ऑन टू राइट हैंड साइड, देन डिवाइडिंग बोथ साइड्स by the constant term on the right hand side, and then reduce the coefficient of x as unity as well as coefficient of y as unity। जो इक्वेशन आएगी आपके पास वो इंटरसेप्ट फॉर्म रिड्यूस होगी आपके पास x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। दैट इज रिड्यूस द जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म। ये सेकंड था आपके पास, जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिड्यूस कर दिया हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में और इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर। अब हम रिड्यूस करेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म, जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इनटू नॉर्मल फॉर्म और परपेंडिकुलर फॉर्म। ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को हमने रिड्यूस करना है in the form of intercept form।
टू नॉर्मल फॉर्म और परपेंडिकुलर फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म और परपेंडिकुलर फॉर्म से आपके पास रिजल्ट आ जाएगा वहां से। प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करना है तो सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड में ले जाएं। इसको इक्वेशन 1 कह दें। कांस्टेंट टर्म ट्रांसपोज इनटू राइट हैंड साइड, देन वी राइट हियर ax plus by is equal to minus c. This is equation number 2. Divide equation number 2 to both sides by coefficient of x का square by coefficients of x का square plus coefficient of y का square with the square. Dividing equation 2 to both sides by coefficient of x का square. Coefficient of x is a, इसका square plus coefficient of y का square with the square root. Divide equation this to both sides by a square plus b square. सेकेंड इक्वेशन को डिवाइड करें तो आपके पास रिजल्ट आएगा ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर स्क्वायर रूट प्लस by अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू माइनस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर स्क्वायर रूट। डिवाइडिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन सेकंड बाय कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर स्क्वायर रूट। अब आपके दिमाग में बात होगी कि इससे कम से क्यों डिवाइड किया। मेरे पास नॉर्मल फॉर्म होती है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। कोफिशिएंट ऑफ x cos स्क्वायर अल्फा, कोफिशिएंट ऑफ y sin स्क्वायर अल्फा और स्क्वायर रूट, तो उसका मतलब 1 ही होगा आपके पास। cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा, कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर विद स्क्वायर रूट, दैट इज cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा 1 होता है आपके पास। इसलिए वो डिवाइड कर रहा है इक्वेशन सेकंड को कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे हम। तो आपके पास रिजल्ट आएगा ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर स्क्वायर रूट प्लस by अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू माइनस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर स्क्वायर रूट। अब राइट हैंड साइड में कंप्लीट कांस्टेंट है, ये इधर नेगेटिव साइन नहीं चाहिए। ये जो टर्म है ये कंप्लीट कांस्टेंट टर्म है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन वो आपके पास पॉजिटिव होगा। रमन यादव आप अपना इसको अनम्यूट करें, आवाज आ रही है आपकी। राइट हैंड साइड में जो है माइनस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट है, ये नेगेटिव साइन हमेशा लेफ्ट में लेके आना आपने, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस p, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो राइट हैंड साइड पॉजिटिव लेंगे तो माइनस ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अजय बेटे ऐसा है, मेरे पास तो प्रॉब्लम है नहीं, आपके पास नेटवर्क का इशू है तो प्लीज आप देखें एक बार। अजय दिखाई नहीं दे रहा। हेलो दिखाई नहीं दे रहा, तब तो आप अपना नेटवर्क बेटा चेक करें। मेरे पास तो बिल्कुल क्लियर आ रहा है, मेरे पास तो बिल्कुल क्लियर आ रहा है बेटा। अरे बेटे आपके पास इश्यू होगा, अदरवाइज ऐसा नहीं है। स्क्रीन ब्लैक मेरे पास तो हो नहीं रही है। हेलो मेरे पास तो बेटा ठीक आ रहा है, अभी चेक कर लेता हूं एक बार। स्क्रीन ब्लैक का तो नहीं होना चाहिए इशू, मेरे पास तो नहीं है। बेटा मेरे पास तो बिल्कुल ठीक आ रहा है।
हेलो, नॉर्मल फॉर्म में। और उसको रिडक्शन का मतलब है कि सबसे पहले कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड में ले जाए आप। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है, इस कांस्टेंट को राइट हैंड साइड में ले जाए आप। ax प्लस बी वाई इक्वल टू माइनस सी हो जाएगा आपके पास। फिर मैंने बोला डिवाइड इक्वेशन सेकंड टू बोथ साइड्स बाय कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर स्क्वायर द रूट। कोएफिशिएंट ऑफ x मेरे पास a है, कोएफिशिएंट ऑफ y मेरे पास b है। उससे अगर मैं डिवाइड करता हूं कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर विद द स्क्वायर रूट, तो मेरे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से दोनों तरफ डिवाइड करूंगा, तो मेरे पास हो गया ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर स्क्वायर रूट प्लस by अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू माइनस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर स्क्वायर रूट। फर्क पड़ा कुछ ऐसा ही है। हेलो बेटे, ऐसा ही आ रहा है रितेश? सभी आप अपने आप को अनम्यूट रखें, अदरवाइज मैं फिर अनम्यूट करूंगा सभी को। जो बच्चा बीच बीच में म्यूट करता है गलत है ये। लक्षित दिखाई दे रहा है? हेलो, आवाज नहीं आ रही है जी? राइट हैंड साइड में नेगेटिव साइन कभी भी पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए उस नेगेटिव साइन को लेफ्ट में ले आए। तो मेरे पास हो गया माइनस ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर स्क्वायर रूट माइनस by अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर स्क्वायर रूट। राइट हैंड साइड द डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन पॉजिटिव चाहिए मेरे को, इसलिए राइट हैंड साइड में कभी भी नेगेटिव साइन नहीं होगा, और अगर नेगेटिव साइन आता है तो उसको लेफ्ट में ले आया। अब इसको कंपेयर करें आप, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। इसके साथ आप कंपेयर करें इसको। जब इसको इस फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे तो मेरे पास रिजल्ट आएगा यहां से cos अल्फा की वैल्यू और sin अल्फा की वैल्यू। व्हाट इज cos अल्फा? x का कोएफिशिएंट, ये x का कोएफिशिएंट cos अल्फा इज इक्वल टू माइनस a अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर स्क्वायर रूट साइन अल्फा कोएफिशिएंट ऑफ y साइन अल्फा इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर स्क्वायर रूट and perpendicular distance from the origin p is equal to c upon a square plus b square square root। तो ये आपके पास cos अल्फा माइनस a अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर स्क्वायर रूट, sin अल्फा माइनस b अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर स्क्वायर रूट एंड कांस्टेंट टर्म लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन p is equal to c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर स्क्वायर रूट। ये रिडक्शन होगा मेरे पास जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को इनटू 3 डिफरेंट फॉर्म्स। First is slope intercept form, second is intercept form, and third is normal और perpendicular form। तीनों कंसेप्ट हमने बताए। जब भी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस करेंगे तो कोएफिशिएंट ऑफ y को लेफ्ट हैंड साइड में रखें, रिमेनिंग टर्म को ट्रांसपोज कर दें। उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ y को यूनिटी बना लें आप, और वहां से स्लोप और इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस की वैल्यू निकाल लें। एक एक एग्जांपल तीनों का मैं बता देता हूं कि जनरल इक्वेशन को कैसे रिड्यूस करना है आपने इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म। वहां से अल्फा और पी की वैल्यू आ जाएगी नॉर्मल फॉर्म के केस में। रिड्यूस द जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है मेरे पास 3x रिड्यूस 3x minus 4y plus 10 is equal to 0 into slope intercept form, reduce 3x minus 4y plus 10 is equal to 0 into slope intercept form। जनरल इक्वेशन है, इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में
तो आपको पता होना कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म मेरे पास ये होगी, इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y इक्वल टू mx प्लस c। सबसे पहले कोएफिशिएंट ऑफ y को लेफ्ट में रखें, सभी को ट्रांसपोज कर दें राइट हैंड साइड में। तो मेरे पास रिजल्ट आ गया माइनस का 4y इज इक्वल टू माइनस 3x माइनस 10। कोएफिशिएंट ऑफ y को यूनिटी बनाएं तो माइनस 4 से डिवाइड कर दें, तो मेरे पास हो गया y इज इक्वल टू माइनस 3x डिवाइडेड बाई माइनस 4 माइनस 10 अपॉन माइनस 4, और मेरे पास हो गया y इज इक्वल टू 3 अपॉन 4x प्लस 10 अपॉन 4, और इसको लिख दिया y इज इक्वल टू 3 अपॉन 4x प्लस 5/2, और इसको कंपेयर किया स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के साथ mx प्लस c। देन व्हाट इज स्लोप? स्लोप इज इक्वल टू m इज इक्वल टू 3/4 m। कोएफिशिएंट ऑफ x वो स्लोप होगी आपके पास, एंड कांस्टेंट टर्म y इंटरसेप्ट c इज इक्वल टू 5/2। जब भी वो जनरल इक्वेशन को रिड्यूस करवाएगा इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, तो आपसे स्लोप पूछेगा वो और इंटरसेप्ट पूछेगा ऑन y एक्सिस। तो ये तो स्लोप होगी कोएफिशिएंट ऑफ x, और कांस्टेंट टर्म दिस इज इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस 5/2 हो गया। रिड्यूस जनरल इक्वेशन इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। सेकंड आता है इसी के ऊपर, रिड्यूस द जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, रिड्यूस दिस इक्वेशन इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म। अब आपको इंटरसेप्ट फॉर्म पता होनी चाहिए, प्रैक्टिस करो। तो इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म, अब आपको पता हो इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होगी। इंटरसेप्ट फॉर्म आपके पास x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। दिस इज कॉल्ड इंटरसेप्ट फॉर्म। a विद द इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस, b विद द इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, राइट हैंड साइड में 1 चाहिए। तो सबसे पहले तो इंटरसेप्ट जनरल इक्वेशन लिखी है, उसके कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड में ले जाए आप, उसके कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड में ले जाए। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 ऐसे लिखे आप। अब राइट हैंड साइड में 6 है, उससे डिवाइड करें आप, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 6। दोनों तरफ 6 से डिवाइड करेंगे तो 2x अपॉन 6 हो गया, प्लस 3y अपॉन 6, और 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 1 हो गया। सबसे पहले जब भी जनरल इक्वेशन को रिड्यूस करेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी रिड्यूस the constant term onto right hand side. Then second step, dividing both sides by the constant term on the right hand side. Then third step, coefficient x unity बना ले आप, coefficient of x को unity बना दे आप। तो मेरे पास आ गया x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 1, एंड वी कंपेयर दिस इक्वेशन विद इंटरसेप्ट फॉर्म। a इज इक्वल टू 3, this is intercept on x-axis, and b is equal to 2, this is equal to intercept on y-axis. They are known as intercept on the axis. First of all, transpose the constant term onto right hand side, then dividing both sides by the constant term on the right hand side, and then reduce coefficient of x as unity as well as coefficient of y as unity. तो आपके पास जो फॉर्म आएगी वो इंटरसेप्ट फॉर्म आ जाएगी आपके पास। इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, एक्स के साथ जो कोएफिशिएंट लिखा है दिस इज इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, वाई के साथ जो कोएफिशिएंट लिखा है दो टर्म लिखी है दैट इज इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। दिस इज x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद आता है नेक्स्ट, रिड्यूस द जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इनटू नॉर्मल फॉर्म। रिड्यूस द जनरल इक्वेशन लिखिए उसने 5x प्लस 12y प्लस 26 इज इक्वल टू 0 इंटू नॉर्मल
or perpendicular form. Find P, that is perpendicular distance from the origin. Also find P, length of the perpendicular from origin of the given line. First of all, जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के अंदर कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड में ले जाए आप. 5x plus 12y is equal to minus 26. This is equation 1. First of all, कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड में रिड्यूस करें आप. देन डिवाइड इक्वेशन 1 to both sides. Divide equation 1 to both sides by coefficient of x का square plus coefficient of y का square root. Coefficient of x is 5, that is 5 का square plus 12 का square and square root, and this is equal to 25 plus 144 square root. This is equal to 169 square root, and this is equal to 13. Dividing both sides by 13. फर्स्ट इक्वेशन को 13 से डिवाइड कर दें तो मेरे पास आ गया 5x अपॉन 13 प्लस 12y अपॉन 13 इज इक्वल टू माइनस 26 अपॉन 13. डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर. कोफिशिएंट x इज 5, कोफिशिएंट y इज 12. स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे तो 13 आएगा. देन 5 अपॉन 13 ऑफ x प्लस 12 अपॉन 13 ऑफ y इज इक्वल टू माइनस 2. बट राइट हैंड साइड में नेगेटिव साइन नहीं चाहिए बिकॉज दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस. राइट हैंड साइड में जो कांस्टेंट है वो पॉजिटिव चाहिए, तो उस नेगेटिव साइड को लेफ्ट साइड में ले आए. तो हो गया माइनस का 5 अपॉन 13 ऑफ x माइनस का 12 अपॉन 13 ऑफ y इज इक्वल टू 2. अब इसको आप कंपेयर करें, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p. And what is p? Length of perpendicular. p is equal to length of perpendicular from origin b to perpendicular distance from the origin is 2 होगा. What is cos अल्फा? cos अल्फा आपके पास आएगा माइनस 5/13. What is sin अल्फा? माइनस 12/13. And what is length of perpendicular is 2. Length of perpendicular और perpendicular distance from the origin वो हमेशा पॉजिटिव मिलेगा आपको. ये 3 केस आपके पास रिडक्शन के थे. जनरल केस, रिड्यूस द जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इन द फॉर्म ऑफ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म एंड नॉर्मल और परपेंडिकुलर फॉर्म. उस केस में आपने रिड्यूस करना है तो आपके पास कंडीशन आ जाएगी. और देखिए इसी का रिडक्शन, reduce the general equation of straight line into normal form or perpendicular form. इसी के ऊपर एक एग्जांपल और कर लेते हैं. x minus root 3y, x minus root 3y, x minus root 3y plus 2 is equal to 0. Reduce this general equation into normal form and hence find value of alpha and p, and hence find alpha and p. Alpha एंगल आपके पास पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, p लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन है. इस जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिड्यूस करना है आपने. x माइनस रूट 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0. सबसे पहले कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड में ले जाए. 1x माइनस रूट 3y इज इक्वल टू माइनस 2. इसको इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं. देन डिवाइडिंग बोथ साइड्स और डिवाइड बोथ साइड्स बाय कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर, स्क्वायर रूट. दैट इज 1 plus 3 square root and this is equal to root 4 and this is 2. डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2. 2 से डिवाइड किया तो 1/2 ऑफ x आ गया, माइनस रूट 3/2 ऑफ y आ गया, इज इक्वल टू 2/2 विद माइनस.
तो मेरे पास आ गया 1/2x -√3/2 ऑफ y इज इक्वल टू -1। लेकिन राइट हैंड साइड में जो डिस्टेंस है वो पॉजिटिव चाहिए मेरे को, तो नेगेटिव साइड को इधर ले आया मैं। तो माइनस का 1/2 ऑफ x प्लस का √3/2 ऑफ y इज इक्वल टू 1। देन हियर x cos alpha plus y sin alpha is equal to p. Then what is cos alpha? Cos alpha is negative, sin alpha is positive, and length of perpendicular or perpendicular distance from 0 0 is 1. P तो आ गया मेरे पास, P इक्वल टू 1। राइट हैंड साइड के अंदर जो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है वो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन है। अब मेरे को अल्फा चाहिए। यहाँ पे कॉस नेगेटिव है, कॉस अल्फा नेगेटिव है, साइन अल्फा पॉजिटिव है। और ऐसा कहाँ होगा? इफ कॉस अल्फा नेगेटिव, साइन अल्फा पॉजिटिव, दिस इंप्लाइज अल्फा लाइज in second quadrant. Alpha lies in second quadrant. ये आप चेक कर लें। cos की वैल्यू नेगेटिव है और sin पॉजिटिव है, ऐसा सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। यहाँ cos नेगेटिव होगा और sin पॉजिटिव होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, थर्ड में tan और cot पॉजिटिव होता है, फोर्थ में cos और secant, cos और sin, cos नेगेटिव sin पॉजिटिव इसी क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। अब अल्फा की वैल्यू, कॉस की वैल्यू हाफ कब होती है? कॉस की वैल्यू हाफ 60 डिग्री और साइन की वैल्यू √3/2 60 डिग्री। तो अल्फा क्या है आपके पास? कॉस अल्फा इज इक्वल टू कॉस 180 - 60। कॉस 60 हाफ होता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में 180 में से 60 रिड्यूस कर दिया, तो मेरे पास आ गया कॉस अल्फा इज इक्वल टू कॉस 120। And this implies alpha is equal to 120 degree. Alpha 120 डिग्री आ गया और लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन 1 आ गया मेरे पास। जब भी आपके पास रिड्यूस करवाएगा जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को नॉर्मल फॉर्म के अंदर, तो वहां से पी और अल्फा पूछेगा, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव लेना है आपने। राइट हैंड साइड में अगर नेगेटिव साइन आता है तो उसको लेफ्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉजिटिव हो जाएगा। वहां से आप कॉस अल्फा और साइन अल्फा के नेचर क्वाड्रेंट्स के अकॉर्डिंग ले जाएं। कॉस की वैल्यू हाफ कब होगी? साइन की वैल्यू √3/2 कब होगी? कॉमन एंगल होगा। अब सेकंड क्वाड्रेंट है, तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर थीटा जो होगा वो 90 से ग्रेटर होगा, 180 से लेस होगा। तो 180 में से वो एंगल सब्ट्रैक्ट कर देंगे जिसके ऊपर उसकी वैल्यू आती है। कॉस 60 हाफ होता है, साइन 60 √3/2 होता है। तो वहां से आपके पास कॉस अल्फा आ गया 180 - 60, दैट इज कॉस 120 डिग्री। तो अल्फा हो गया 120, एक्स कॉस 120 प्लस वाई साइन 120 इज इक्वल टू दिस। कॉस अल्फा की वैल्यू पुट कर दे, साइन अल्फा की वैल्यू पुट कर दे, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। तो ये आपके पास फॉर्म होगी cos x cos 120 प्लस y sin 120 इज इक्वल टू 1। दिस इज नॉर्मल फॉर्म। अल्फा की वैल्यू 120 पुट कर दी मैंने यहाँ पे, तो मेरे पास रिजल्ट आ गया। तो ये जनरल इक्वेशन को रिड्यूस करना आपने इन दी फॉर्म ऑफ नॉर्मल फॉर्म। इसी पे क्वेश्चन आता है, शो दैट ओरिजिन इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द थ्री लाइंस। ओरिजिन, शो दैट ओरिजिन इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द थ्री लाइन। शो दैट origin is equidistant. Show that origin is equidistant from the three straight lines. From the three straight lines. First line है मेरे पास 4x plus 3y plus 10 is equal to 0. सेकेंड लाइन है मेरे पास 5x माइनस 12y प्लस 26 इज इक्वल टू 0। और थर्ड लाइन है मेरे पास 7x प्लस 24y प्लस 50 इज इक्वल टू।
is equal to 50. 3 lines are given. Show that origin is equidistant from the 3 straight lines. इसका मतलब सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को रिड्यूस करें नॉर्मल फॉर्म में. ऑरिजिन बोला उसने, ऑरिजिन इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द 3 स्ट्रेट लाइंस. ऐसी कंडीशन आपके पास, ये एक्स एक्सिस ये कोई लाइन है, ऑरिजिन ये आपके पास, ये ओरिजिन इस लाइन से इक्विडिस्टेंस है, ये पूछा है. इस लाइन से ऑरिजिन का डिस्टेंस, इसका मतलब पी चाहिए आपको, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर. इस लाइन का लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ऑरिजिन चाहिए, इसका लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ऑरिजिन चाहिए, इसका लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ऑरिजिन चाहिए, और तीनों का जो पी आएगा वो इक्वल आना चाहिए इक्वी डिस्टेंस का उसमें. ऑरिजिन इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द गिवन 3 स्ट्रेट लाइंस. तो सबसे पहले आप रिड्यूस करें फर्स्ट इक्वेशन को. फर्स्ट ऑफ ऑल रिड्यूस फर्स्ट इक्वेशन इनटू नॉर्मल फॉर्म. रिड्यूस इक्वेशन फर्स्ट इनटू नॉर्मल फॉर्म. फर्स्ट इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करें, और जब हम फर्स्ट इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा. कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड में ले जाए. 4x + 3y इज इक्वल टू -10 इज इक्वल टू -10. कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड में ले गया. देन डिवाइड इक्वेशन 2, डिवाइड इक्वेशन 2 to both sides by coefficient of x का स्क्वायर, coefficient of y का स्क्वायर, स्क्वायर रूट. 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 3 का 9 हो गया, दोनों का स्क्वायर रूट दैट इज 5. सेकेंड इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर दें तो ये हो गया 4/5x प्लस 3/5y इज इक्वल टू -10/5. तो यहां से हो गया, नेगेटिव साइन को लेफ्ट में ले आया मैं, दिस -3/5 ऑफ y इज इक्वल टू 2. और इसको कंपेयर कर दिया तो यहां से P1 कह दिया, P1 2 आ गया. व्हाट इज P1? फर्स्ट लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस. 1 का मतलब फर्स्ट लाइन, P का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन 2. फर्स्ट लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन 2 आ गया आपके पास. इसी तरह सेकंड लाइन को रिड्यूस करें. अब सेकंड लाइन को रिड्यूस करें तो कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड में ले जाएं आप, इज इक्वल टू -26. डिवाइड दिस इक्वेशन, डिवाइड द इक्वेशन थर्ड टू बोथ साइड्स. कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर, स्क्वायर रूट. 525 हो गया, ये 144 हो गया, इसका मतलब 13 से डिवाइड कर दें तो आपके पास आ गया 5x/13 -12/13y इज इक्वल टू -26/13. डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 13. तो मेरे पास रिजल्ट आ गया 5x/13 -12/13y इज इक्वल टू -2. लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस किया है तो राइट हैंड साइड पॉजिटिव चाहिए, तो माइनस साइन को आप इधर ले आए. माइनस का 5/13x प्लस का 12/13y इज इक्वल टू 2. और यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द सेकंड लाइन फ्रॉम द ऑरिजिन P2 2 आ गया. इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन P2 आपके पास कितना आया, वो आपके पास आ गया 2. अब थर्ड इक्वेशन है, कांस्टेंट टर्म ऑन द राइट हैंड साइड आपके पास 7x + 24y इज इक्वल टू 50 गिवन है. तो डिवाइड इक्वेशन दिस, डिवाइड इक्वेशन थर्ड to both sides by coefficient of x का स्क्वायर, coefficient of y का स्क्वायर, स्क्वायर रूट. और ये हो गया 49 और ये हो गया 576 और यहां से हो गया 25. 25 से डिवाइड कर दे बोथ साइड्स. तो बोथ साइड डिवाइड करेंगे तो 7x/25 प्लस 24/25 ऑफ y इज इक्वल टू 50/25. इक्वेशन थर्ड को डिवाइड कर दिया बोथ साइड्स बाय 25. तो इक्वेशन रिड्यूस हो गई 7x/25 प्लस 24/25 ऑफ y इज इक्वल टू 2.
और इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया P3 इज इक्वल टू 2। उसने कहा कि ओरिजिन इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द थ्री स्ट्रेट लाइंस। फर्स्ट लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज 2, सेकंड का भी 2 और थर्ड का भी 2। दे आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। जब भी ओरिजिन से किसी लाइन का डिस्टेंस पूछेगा तो आपने उस इक्वेशन को रिड्यूस करना है किस फॉर्म में, नॉर्मल फॉर्म में, और वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू निकालेंगे, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, और जो वो डिस्टेंस आएगा वो पॉजिटिव आना चाहिए, तो आपके पास कंडीशन आ जाएगी। इस एक्सरसाइज के अंदर रिडक्शन, जनरल रिडक्शन के अंदर ये तीन ही केस थे। इसमें से भी 1 मार्क्स में 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट आर्टिकल, एंगल बिटवीन टू लाइंस। एंगल बिटवीन टू लाइंस इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, एंगल बिटवीन टू लाइंस। एंगल बिटवीन टू लाइंस। Let equation of line, फर्स्ट आपके पास y इज इक्वल टू m1x प्लस c1, और सेकेंड लाइन आपके पास y इज इक्वल टू m2x प्लस c2 विद द टू लाइन्स। ये दो लाइन्स आपके पास y इज इक्वल टू m1x प्लस c1 एंड y इज इक्वल टू m2x प्लस c2 विद द टू लाइन्स। And theta be the angle between them. Theta be the angle between them. ये माइनस एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है माइनस वाई एक्सिस। ये आपके पास को लाइन है, लाइन फर्स्ट, ये को लाइन सेकंड आपके पास। थीटा विद एंगल बिटवीन देम। ये लाइन फर्स्ट लाइन थीटा 1 एंगल बनाती हुई पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस साथ, और ये लाइन थीटा 2 एंगल बनाती हुई पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। लाइन फर्स्ट एंड दिस इज लाइन सेकंड। ये L2 है, ये L1 है, with the two lines. This is L1, this is L2, and theta with the angle between them. Then this point is P, this Q and this R. तो एक ट्रायंगल आपके पास P Q R। इन ट्रायंगल P Q R, exterior angle of a triangle is equal to sum of interior opposite angles. Sum of interior opposite angles. Exterior angle of a triangle is equal to sum of interior opposite angles. 9th क्लास में ज्योमेट्री में था ये रिजल्ट आपके पास, और यहां से मैंने लिख दिया थीटा विद एंगल बिटवीन देम, तो थीटा 2 माइनस थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा। इस थीटा की वैल्यू चाहिए, ये एंगल चाहिए मेरे को। अब नॉन वर्टिकल लाइन है तो दोनों तरफ टेंजेंट अप्लाई कर रहे हैं, दोनों तरफ टेंजेंट अप्लाई करेंगे तो ये तो हो गया tan थीटा। इधर tan अप्लाई किया तो tan थीटा 2 माइनस थीटा 1। मेरे को एंगल चाहिए थीटा, tan थीटा की वैल्यू चाहिए, तो यहां से हो गया tan थीटा इज इक्वल टू, यहां अप्लाई करें आप tan a माइनस बी, यहां अप्लाई करें आप टेंजेंट a माइनस बी। आइडेंटिटी आपके पास tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a tan b। a की जगह थीटा 2 है, b की जगह थीटा 1 है, तो मेरे पास हो गया टेंजेंट थीटा 2 माइनस टेंजेंट थीटा 1 अपॉन 1 प्लस टेंजेंट थीटा 1 इंटू टेंजेंट थीटा 2 यूजिंग द आइडेंटिटी tan a माइनस b। तो यहां से आ गया टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू tan थीटा 2, ये सेकेंड लाइन है, tan थीटा 2 इज इक्वल टू m2, द स्लोप ऑफ द सेकेंड लाइन, एंड tan थीटा 1 इज इक्वल टू m1। फर्स्ट लाइन की स्लोप m1 है, m1 को लिखा tan थीटा 1, सेकेंड लाइन की स्लोप m2 है, उसको लिखा tan थीटा 2। तो जहां भी tan थीटा 2 लिखा उसकी जगह m2 लिखते हैं, m2 tan थीटा 1 m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, और इसका मैग्नीट्यूड ये आप लिख सकते हैं m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2। दिस इज आल्सो tan थीटा। किसी की स्लोप m1 m2 माइनस m1, m2 सेकेंड लाइन की स्लोप है, m1 फर्स्ट लाइन की स्लोप है,
अपॉन 1 प्लस m1 m2 या फिर m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैग्नीट्यूड लेंगे टेन थीटा, थीटा जो लेंगे आप वो थीटा आपके पास पॉजिटिव आना चाहिए। तो यहाँ से आप स्लोप निकालेंगे, फर्स्ट लाइन की स्लोप और सेकंड लाइन की स्लोप, और दोनों की स्लोप निकाल करके आप डायरेक्ट पुट करेंगे तो आपके पास एंगल बिटवीन टू लाइंस आ जाएगा। थीटा भी द एंगल बिटवीन टू लाइंस। फर्स्ट लाइन की स्लोप tan θ1 m1 है, सेकंड लाइन की स्लोप m2 है। तो गिवन लाइंस की स्लोप निकालें आप, और स्लोप निकाल करके डायरेक्ट आप आइडेंटिटी में पुट कर दें तो आपके पास कंडीशन आ जाएगी, एंगल आ जाएगा बिटवीन टू लाइंस। अब दो रिजल्ट्स आपने पढ़े हैं। फर्स्ट रिजल्ट, इफ लाइंस बी पैरेलल, lines be parallel or collinear, this implies theta is equal to 0 degree or 180 degree। अगर लाइंस पैरेलल है, ये लाइन यहां से उठ करके दिस लाइन फर्स्ट इसके पैरेलल आ जाए, या ये लाइन यहां से उठ करके एंगल बना दे 180 डिग्री का, then this implies tan 0 0, और इसका मतलब होगा m1 इज इक्वल टू m2। तो क्या आप रखेंगे tan 0 यहाँ पे, tan 0 0 होगा, इसको मल्टीप्लाई करें तो 0 हो जाएगा, तो m1 माइनस m2 इज इक्वल टू 0। तो m1 इज इक्वल टू m2। m1 फर्स्ट लाइन की स्लोप है, m2 सेकंड लाइन की स्लोप है। दो लाइंस की स्लोप अगर इक्वल होगी तो लाइंस पैरेलल होगी, ये आप पढ़ चुके हैं। और उसके बाद आता है इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, if two lines are perpendicular, if two lines be perpendicular, this implies theta is equal to 90 degree and this implies tan 90 is equal to 1 upon 0। tan 90 theta 90 रखेंगे तो आपके पास आएगा tangent 90 is equal to m2 minus m1 1 प्लस m1 m2। अब tan 90 आपके पास क्या होगा, tan 90 आपके पास 1 अपॉन 0 होगा। 0 को इससे मल्टीप्लाई, 0 इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 1 प्लस m1 m2 इज इक्वल टू 0, और यहां से आ जाएगा दोनों की स्लोप की प्रोडक्ट m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। जब भी दो लाइंस परपेंडिकुलर होंगी तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग स्लोप्स की प्रोडक्ट -1 होगी अगर लाइंस परपेंडिकुलर है तो, और अगर लाइंस पैरेलल है या कॉलिनियर है तो दोनों की स्लोप इक्वल होगी आपके पास। ये कंडीशन है, यहाँ तक आप रीड करें। इससे जो एक्सरसाइज है वो कल हम डिस्कस करेंगे। आज आपने सिर्फ जनरल डिडक्शन ऑफ द स्ट्रेट लाइन को फॉलो करना है। जनरल डिडक्शन के अंदर जो जो रिजल्ट